Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. Today we are starting with our next topic of the rotational motion. We discussing in our last class their rotational motion and discussed already there is a theorem of the perpendicular and parallel axis theorem of the rotational motion. So today we will discuss there how we can apply these two theorem to find the moment of inertia of the different shape, for example ring and a disk, solid sphere, hollow sphere, cylinder. Then for these terms, how we can apply these theorem, perpendicular and parallel axis theorem, to find the moment of inertia. So here in last class beta we discussed these two theorem. First one perpendicular axis theorem. अगर हमें perpendicular axis theorem moment of inertia find करना है of that axis which is perpendicular to the remaining two axes, then we will apply their perpendicular axis theorem. So according to this one perpendicular axis theorem, moment of inertia of one axis will be equal to sum of the another two axes which are perpendicular with each other. ओके कि अगर आपने बॉडी इस तरीके से ले रखी सर्कुलर शेप में, आपको दो बॉडीज के अलोंग क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. थर्ड वन क्या, उन दोनों के परपेंडिकुलर है, तीनों के एक्सिस अपने आप में परपेंडिकुलर है, तो एक के अलोंग अगर फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ द अनदर टू एक्सिस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू each other. Okay, so after that next one parallel axis theorem. In the parallel axis theorem we will discuss there moment of inertia of the parallel axis which is parallel to the axis which is parallel to the another axis passing through this surface. Okay, then having some distance between them, let there h the distance between them. तो moment of inertia आपको इसके along find करना है जो कि क्या है, उस एक्सिस के पैरेलल रहेगी जिस एक्सिस के along क्या कर रही, बॉडी रोटेट कर रही है. ये बॉडी इज अ रोटेटिंग ओमेगा with this axis of the rotation. Then you want to find out moment of inertia along xy. Then moment of inertia along xy will be equal to sum of the moment of inertia of the axis of the rotation plus product of the mass of that body which is rotating and square of the distance between these two parallel axes. दोनों parallel axes के बीच का distance का square रहेगा. So according to parallel axis, this one is the equation to find the moment of inertia of the axis which is parallel to the axis of the rotation. So how we can apply these two theorem to find their moment of inertia. For example beta, moment of inertia of ring. So along the center we know about this one, how much will be take place along center of axis. Moment of inertia of ring will be equal to your mr square. अब अगर ये रिंग है बेटा, ये रिंग क्या कर रही है, इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेट करती है विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस वन एक्सिस. So let we want to find out moment of inertia along this one axis. इस axis के along क्या करना है, moment of inertia find करना है which is parallel to the this one. Moment of inertia along this one axis you want to find out. अगर ये आपको गिवन है, so how we can find there, ये क्या रहेगा, इसका डायमीटर के along रहेगी along this one axis. अगर बॉडी क्या कर रही है, इस axis के along rotate कर रही, इस axis के along rotate करे, so how we can find this one. So here we apply this one axis is a perpendicular to the diameter is a perpendicular, diameter of ring is perpendicular to the axis of rotation, axis of rotation which is passing through the center, जो क्या सेंटर के अलोंग पास हो रही है. क्लियर. सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन. This one will be, this diameter will be perpendicular to it. So according to the perpendicular axis theorem, according to perpendicular axis theorem, we can write there I
this one. Let here we are writing their name A, B, and this one we can write their X, Y. So here we can write there along AB, we know about this one moment of inertia. So here AB equal to your along your XY plus third one axis will be along this one your diameter. Like here we are writing there RT. This one axis will be also RT. Let here along the Z axis. So RT and this one both are acting along diameter. ये क्या रहेंगे इस रिंग के diameter रहेंगे. So diameter will be remain same. So moment of inertia Iy equal to moment of inertia I2. अब बॉडी चाहे सर्कुलर शेप की है, रिंग है आपका, तो डायमीटर किसी भी अलोंग आप एक्स के लोंग, अगर ये आपका y के लोंग है, ये वाला x के लोंग है, थर्ड वाला क्या है z के लोंग है, तो दोनों डायमीटर क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, क्योंकि डायमीटर तो इक्वल ही रहता है. सो I विल बी I अलोंग x y RT बोथ विल बी रिमेन सेम. सो एज बोथ विल बी रिमेन सेम, सो दिस वन टर्म वी कैन राइट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB इक्वल टू योर 2Ix, क्योंकि दोनों क्या है सेम है. हियर वी कैन राइट देयर Ixy plus your Ixy because of your Ixy equal to IRT. दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे. सो इक्वल है तो वी कैन राइट देयर 2Ixy IAB. So here Ixy moment of inertia along this axis we can write there IAB divide by 2. अब हमें रिंग के अलोंग पता है, as we know moment of inertia along the center, then we can write there mr square along center. सेंटर के रिंग के सेंटर के अलोंग हमारा क्या है mr square. So as we are putting here, then here Ixy we can write there mr square by 2. So this one is a moment of inertia along the diameter. Moment of inertia of ring along किसके along है diameter के along. It will be along the diameter. Okay, I hope you understood. Second one theorem, how we can use the parallel axis theorem. अगर रिंग है आपका सेंटर ऑफ एक्सिस, अगर ये आपका रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, और किसके अलोंग फाइंड करना है रिंग के अलोंग. ये अगर आपकी रिंग है, okay, this one is the central axis along which body is rotating, जिसके along क्या कर रही है बॉडी रोटेट कर रही है with the omega, and another one axis is this one. क्लियर. इस एक्सिस के along आपको फाइंड करना है जो कि क्या है पैरेलल है. दिस वन योर XY and AB. XY is parallel to the axis of the rotation. XY क्या है वो एक्सिस है, वो आपकी टेंजेंट लाइन है विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग. ओके, सो इसके अलोंग अगर आपको फाइंड करना है, सो IAB हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या फाइंड करना है IXY मीन्स IXY इक्वल टू है क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया along tangent which is parallel to the center of axis of rotation. Center of axis of rotation कौन से वाला center of axis of rotation IAB. Clear? IAB. So IXY we can write there IXY will be equal to moment of inertia if there is a distance between them is r. अगर r इसकी रेडियस है, so here
वी कैन राइट देयर डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो विल बी r, बिकॉज कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। देखो बेटे ये रिंग है, अगर आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हम किसके अलोंग फाइंड करें, इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करें, इस एक्सिस के अलोंग फाइंड कर रहे हैं जो इसके क्या है, पैरेलल है। ये एक्सिस ऑफ, ये रिंग है, इस रिंग का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, उस रिंग के इधर जो एक्सिस है वो इसके क्या है, पैरेलल है। तो हम इस पैरेलल एक्सिस के अलोंग हम फाइंड कर रहे हैं, इस पैरेलल एक्सिस के जो इसके पैरेलल है। क्लियर? तो अगर इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या रहेगा, वी कैन राइट इट रेडियस। रेडियस ही क्या रहेगा, दोनों एक्सिस के पैरेलल का डिस्टेंस रहेगा। सो हियर वी कैन राइट देयर वेयर r equal to radius of ring means distance between these two parallel axes. तो पैरेलल एक्सिस रहेंगे, वन इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन. सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन राइट देयर. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टेंजेंट लाइन कौन सी है, एक्स वाई है. ओके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर आई ए बी प्लस mass of this one and square of the distance between them, and this one square of the distance, there r is given, radius of this ring, so here we can write there mr square. अब I A B के along हमें पता है, so as we know we can write there as we know moment of inertia along AB equal to our mr square. Along the center already we know, so as we are putting here, then I xy equal to your mr square plus your mr square, both as we are adding, then here will come your 2mr square. This one will be moment of inertia along the tangent parallel line which is passing through the which is parallel to the center of axis of the rotation. Okay, this one along xy, किसके along है ये, xy के along है. So this one our moment. I hope you understood beta now how we can apply their parallel and perpendicular axis theorem. अगर आपको moment of inertia पैरेलल एक्सिस के लोग निकालना है, दूसरा जो एक्सिस है वो हमारा नोन है, और दूसरा सेकंड वाला जो एक्सिस जिसका हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज पैरेलल टू द नोन टर्म, देन वी विल यूज देयर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अगर वो परपेंडिकुलर एक्सिस है देन वी विल यूज देयर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. सो हियर वी अप्लाई देयर बोथ थ्योरम इन केस ऑफ द रिंग. सो सेम एज योर डिस्क इज गिवन, सो हाउ वी कैन अप्लाई देयर. अगर आपके पास ये रिंग है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आपको इसके अलोंग फाइंड करना है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग कैसे रोटेट कर रही, इस तरीके से रोटेट कर रही है एक्सिस के, तो इसके अंदर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे बट अलोंग द डायमीटर. ये क्या रहेगा हमारा डायमीटर. अब डायमीटर के अलोंग हमने रिंग का फाइंड किया था, कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर होता है, और दिस वन इज पैरेलल टू द डायमीटर. ओके सेम फॉर दिस वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अलोंग द पैरेलल एक्सिस या टेंजेंट कह सकते हो, विच इज पैरेलल, किसके पैरेलल है, टू दी डायमीटर के पैरेलल रहेगा. क्लियर. ये अगर आपका रिंग है तो बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है, दैट इज पैरेलल टू द डायमीटर. ये क्या आपका दिस वन आर दैट इज डायमीटर. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हमारा इसके अलोंग रोटेट कर रही है, बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है. ओके तो ये हमारा क्या रहेगा, ये एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर, ये भी क्या हमारा आर है. तो इसके अंदर अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो हियर वी कैन राइट देयर आई एक्स वाई ए बी. सो हियर आई एक्स वाई इक्वल टू आई ए बी प्लस योर एम आर स्क्वायर. अब आई ए बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी डायमीटर. ये क्या है, अलोंग डायमीटर. अब की बार सेंटर के अलोंग नहीं है बेटा, ये जो एक्सिस है वो पैरेलल टू दी डायमीटर है. दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट देयर 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. सो हियर वी कैन राइट देयर 3/2 mr स्क्वायर.
this one of the moment of inertia IXY, moment of inertia of the axis which is parallel to the diameter, किसके along है, diameter के parallel. So like this one we can find there again their parallel axis theorem in case of the ring. तो ये हमने किस केस किया था, रिंग के लिए. ऐसे अगर आप डिस्क के लिए फाइंड करें देन डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क along center equal to 1/2 mr square. सो अगर ये आपकी डिस्क है, डिस्क कैसी होती है, हैविंग अ प्लेट एंड इन दैट प्लेट वी आर यूजिंग अ होल. इस प्लेट के अंदर क्या एक छोटा सा होल है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क. तो इसके अंदर भी क्या है, केस है कि अगर रोटेट कर रही इसके अलोंग, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस वन, देन हियर अलोंग दिस वन योर IAB. Okay, so this one we can write there IAB equal to your 1/2 mr square. तो इसी तरीके से अगर आप डायमीटर के अलोंग फाइंड करो, दिस वन विल बी अलोंग x एक्सिस डायमीटर, अलोंग x एक्सिस दिस वन डायमीटर विल बी अलोंग योर z एक्सिस. सो AB डायमीटर ऑलरेडी गिवन, देन अलोंग द डायमीटर वी कैन राइट देयर अलोंग डायमीटर मोमेंट ऑफ inertia along diameter of डिस्क. डिस्क के डायमीटर के अलोंग कैसे फाइंड करेंगे हम, सो हियर अप्लाई देयर अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगेन perpendicular axis theorem. So here we can write there IAB equal to our IX plus IZ, or IX and IZ will be equal with each other. IX equal to your IZ equal to डायमीटर. दोनों डायमीटर है तो डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. सो अलोंग ए बी हमारा क्या गिवन है, 1/2 mr स्क्वायर इक्वल टू आवर IX प्लस योर IX, दोनों इक्वल रहेंगे. दैट्स व्हाई वी कैन राइट देयर IX ओनली. सो एज वी विल सोल्व दिस वन, देन 2IX इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर. सो 2 को इधर लेके आएंगे तो इधर आने के बाद IX क्या बन जाएगा, IX इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर. दिस वन आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर, किसके अलोंग है, अलोंग द डायमीटर. ये x के अलोंग रहेगा, यही क्या है आपका, ये x है ना, यही क्या है आपका z के अलोंग रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ऑल कंप्लीट डायमीटर चाहे x के अलोंग हो या y की या z के, किसी भी डायमीटर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. और डायमीटर के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, 1/4 mr स्क्वायर. Okay, by using our perpendicular axis theorem. So again next we want to find out moment of inertia along the parallel axis. Okay, parallel axis के along क्या अगर हमें find करना है, so this one our disk and in this one disk that this axis of rotation is this one, then another axis is the ओमेगा. इसके अलोंग अगर रोटेट कर रही है, सेकंड वाला एक्सिस क्या है, पैरेलल टू दिस वन. इस एक्सिस की क्या है, पैरेलल है. इफ r is distant between them, so here IXY we can write there AB. अगर बॉडी इसके अलोंग तो हमें पता रोटेट करेगी तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, 1/2 mr स्क्वायर. इफ बॉडी इज रोटेटिंग अलोंग दिस वन, बॉडी यहाँ की बजाय इसके अलोंग रोटेट कर रही है. ओके, अगर आपकी डिस्क है, वो डिस्क क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ओके, इसके पैरेलल जो एक्सिस है इस तरीके से, उसके अलोंग ऐसे अगर रोटेट कर रही, सो हाउ वी कैन फाइंड देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस वन इज अ पैरेलल टू दी दिस वन एक्सिस. इस एक्सिस के क्या है, ये एक्सिस पैरेलल रहेगा. सो फाइंड आउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, देन अगेन वी विल अप्लाई देयर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, सो हियर हाउ वी कैन फाइंड देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया along this one, along the tangent. Okay, along the tangent
which is parallel to center of axis of rotation. सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके क्या है, सेंटर ऑफ एक्सिस के अलोंग क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू वेयर इफ r is a distance between them we are taking and r will be radius of this one, so here we can write there according to parallel axis theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन केस ऑफ डिस्क. डिस्क जैसे हमने रिंग के अंदर अप्लाई किया था वैसे ही क्या हम डिस्क के अंदर अप्लाई करेंगे. सो अलोंग द डिस्क वी कैन राइट देयर आई एक्स वाई इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर. ओके, और एच क्या गिवन हमारे पास, आर गिवन है, डेट्स वाई हियर वी कैन राइट देयर एम आर स्क्वायर. तो आई ए बी के अलोंग क्या रहेगा, दिस वन योर आई ए बी के अलोंग क्या, सेंटर ऑफ एक्सिस, ये हमें पता है डिस्क का कितना होता है, योर डिस्क आई ए बी, दिस वन योर 1/2 एम आर स्क्वायर अलोंग सेंटर. किसके अलोंग है, सेंटर के अलोंग. सो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस योर एम आर स्क्वायर, देन हियर विल बी योर 3/2 एम आर स्क्वायर. सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर. दिस वन अलोंग एक्स वाई क्या रहेगा, एक्स वाई वो लाइन जो कि पैरेलल है किस एक्सिस के पैरेलल, जो इसके सेंटर से पास हो रहा है ऑफ द डिस्क. Okay, so we discuss their ring and disc in case of the parallel and perpendicular axis theorem along the diameter and the tangent line which is parallel to the axis of the rotation. Like this one we will apply there for the solid sphere, hollow sphere like this one, cylinder we can apply there. So how we can apply their moment of inertia along the center. Okay, along center. डिफरेंट शेप के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन रिंग का हमने फाइंड किया, रिंग का कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. सेकेंड ईयर डिस्क का 1/2 एम आर स्क्वायर. दीज यू हैव टू लर्न बेटा. सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर. ओके, देन नेक्स्ट विल बी योर सिलेंडर, solid cylinder, then it will be equal to your 1/2 m r square. Okay, like this one. So then here next will be your hollow sphere, then it will be your 2/3 m r square. Okay, like this one you have to learn. Second, by using your diameter के अलोंग हमने अभी फाइंड किया है, डायमीटर के अलोंग रिंग के लिए हमने फाइंड किया, तो रिंग के लिए हमारे पास क्या आया, 1/2 एम आर स्क्वायर. क्लियर. इसी तरीके से हमने क्या था, डिस्क के लिए हमने फाइंड किया, तो डिस्क के लिए हमारे पास क्या आ रहा था, 1/2 का इधर लेके जाएंगे तो क्या आया था, डायमीटर के अलोंग 1/4 एम आर स्क्वायर. इसी तरीके से इन टेबल को कंप्लीट करना है यूजिंग देयर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सेम फॉर दी अलोंग द टेंजेंट लाइन, अलोंग टेंजेंट जो कि क्या है, टेंजेंट के अलोंग है. तो टेंजेंट के अलोंग अगर हमने फाइंड किया है तो हमारे पास क्या आया था, डायमीटर के अलोंग तो 1/2 एम आर स्क्वायर आया था, और हमारा इसके अंदर ये आया था, तो टेंजेंट के अलोंग पैरेलल क्या रहेगा, 2 एम आर स्क्वायर. ओके, और इसके लिए हमारे पास आया था 3/2 एम आर स्क्वायर. Same for the solid sphere we have to find out, and same for the this one. This your homework beta. Try to do yourself how we can apply these parallel and perpendicular axis theorem for our solid sphere, cylinder and hollow sphere. I hope you understood beta how we can apply this one. Their moment of inertia of the different shape, how we can find there. So thank you for watching today our video.